Assalamu alaikum. My name is Nashwa Mekin. I'm a clinical psychologist. As part of the mental health awareness campaign, today our topic is ADHD in adults. So as usual, we have Dr. Raheel Karim, professor of psychiatry. So Assalamu alaikum. Walaikum salam. Can you please introduce yourself, Dr. Raheel Karim? I think for my detailed introduction, you need to probably go to my website. But I have 4 decades of experience in the field, and more recently I've been focusing on treatment of ADHD in adults and ADHD complicated by substance misuse. So really, I'm a fellow of the Royal College of Psychiatrists, practicing in London, Manchester and in Lahore. So what is ADHD? It is basically attention deficit, which stands for the AD bit, and hyperactivity disorder. So it has 2 elements to it: attention deficit and hyperactivity disorder. So if I was to expand on it, तो ये represent करती हैं patterns of behavior which usually appear in childhood. तो neurodevelopmental disorder है, ये बचपन से शुरू होता है, recognize हो या ना हो. अक्सर parents and teachers will notice that the child is usually either overactive, which is the hyperactivity bit, can do impulsive things, यानी कि वो spur of the moment में चीज़ें करता है without thinking. Teachers ये बताते हैं वालिदैन को कि बच्चा concentrate नहीं कर सकता for any length of time, and also that he does not get on with other people, and that he lags behind at work or at school, and academically वो उसका decline रहता है. So what happens as the time goes on? Funnily enough, it tends to get better as people get older, but clearly we know that it can continue in adult life. अक्सर ये देखते हैं कि ओवर एक्टिविटी का जो एलिमेंट है ना वो कम हो जाता है, लेकिन इम्पल्सिविटी, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, रिस्क टेकिंग, ये चीज़ें वर्स हो जाती हैं. इसका नुकसान ये है कि इट मेक्स इट हार्डर टू वर्क, टू लर्न एंड टू गेट ऑन विद अदर पीपल. And it's not surprising that adults with ADHD are more likely than to experience other mental health problems like depression, anxiety, feeling low, इनकी self-esteem कम हो जाती है, and more often than not they can actually enter into taking substances and then can get hooked on to it. So how is drug correlated with ADHD? Drug misuse का correlation बड़ा strong है because people tend to become overwhelmed. They are struggling in their day-to-day life. They are struggling in their social contacts. They are struggling at work. तो ये फिर अपने आप को self-treat करते हैं, and they can then enter into experimenting with drugs, and then sometimes they get stuck into it, you know. So how is ADHD diagnosed? देखें जी, न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जैसे मैंने पहले बताया. तो सिम्टम्स तो 5 साल की उम्र से वाज़े होने शुरू हो जाते हैं, 5 से 12 तक या लेट टीन्स. हमारे यहाँ थोड़ा सा इसलिए इतनी जल्दी पता नहीं लगता कि चिल्ड्रन डोंट लीव होम टिल वेरी लेट, सो दे नॉर्मली हैव अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट टिल दे एक्चुअली लीव होम. तो उस वक्त तक ये मास्क रहता है. बट इंग्लैंड में जैसे देखा जाए, वेयर चिल्ड्रन एक्चुअली लीव होम, और वहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वहाँ ये जल्दी डायग्नोज हो जाता है. वहाँ बच्चों की एक स्पेसिफिक सर्विसेज है जिसको हम कैम्प्स कहते हैं, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ सर्विस है, और पीडियाट्रिशियंस काफ़ी अवेयर हैं इस कंडीशन के, तो वो भी पिकअप करते हैं. और इनकी स्पेशलिस्ट असेसमेंट्स होती हैं स्कूल के दौरान, और फैमिली और टीचर्स सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड देर आर ऑल इन्वॉल्व जस्ट टू मेक द चाइल्ड बेटर. देखें, बच्चे ने अर्ली ही सीखना है ज़्यादा, तो अगर उसकी अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं होगी या वो हाइपर एक्टिव होगा तो वो उतना नहीं सीख पाएगा क्लास में जितना कि उसका पोटेंशियल है. ये बड़ी रिकग्नाइज कैटेगरीज़ हैं. 2 क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे मैंने पहले भी टॉक्स में मेंशन किया. एक तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है जिसको ICD-10 करते हैं, ये यूके का सिस्टम है, और यूनाइटेड स्टेट्स में इसको DSM यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल सिस्टम है. उसमें एक अलहदा इन्होंने कैटेगरी भी डाली है उसको, जिससे
ADHD of the inattentive type. So this condition is without overactivity. So sometimes this is also called ADD, Attention Deficit Disorder. So how common is ADHD? ADHD is fairly common and very underdiagnosed. 3 to 6 in every 100 school-age children have ADHD. So for about 1 in 7 children with ADHD, their ADHD will continue into adulthood. About half will have some problems as adults, although they may not present with full symptoms of attention deficit hyperactivity disorder. ये भी बात है जैसे childhood के जितने भी problems हैं वो boys में ज़्यादा हैं as compared to girls. अच्छा. So in children, boys are more commonly diagnosed with girls with ADHD, whereas in adults there are more equal numbers of men and women seen in the clinic. तो in short, बच्चों में boys में ज़्यादा common है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो रेशो आदमियों औरतों का बराबर हो जाता है. So what a patient might experience if they have ADHD? देखें जी, अगर आपको ADHD है या किसी को, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्ट्रैक्टेबिलिटी. तो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये अटेंशन टू डिटेल को नहीं देख सकते. सो दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू नोटिस द डिटेल्स बिकॉज डिटेल्स इनके लिए काफ़ी बोरिंग होती हैं. दे फाइंड इट हार्ड टू लिसन टू अदर पीपल और ये इंटरप्ट करते हैं लोगों को. Sometimes they may finish the sentence of others or they may preempt कि भाई अगले ने क्या बोलना है, तो उसी वक्त वो उनके सवालों का जवाब खुद ही दे देते हैं. Often ये conversation में interrupt करते हैं लोगों को. They may be saying things at the wrong time. They find it very hard to organizational skills इनकी काफ़ी poor होती हैं because they are very distractible. So they find it very hard to organize themselves. ये बहुत सारी चीज़ें शुरू करते हैं. Sometimes they do not even finish them, and this is because their concentration span is very poor. So they may flit from one topic to another. They find it hard to wait for their turn. ये काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं. अगर बैठे हैं तो फिजिट कर रहे होते हैं. They're unable to sit still. पेन से खेल रहे हैं, स्क्रिबल कर रहे हैं. Restless legs इनकी हैं. Impatience, easily becoming irritable and frustrated and losing their temper can be one of the symptoms of ADHD. तो ये restless feel करते हैं, always on the edge, and they have difficulty turning their thoughts off, and equally all this then generates a lot of stress which they find hard to handle. ये बहुत forgetful होते हैं. चूँकि बहुत सारे टास्क शुरू कर रहे होते हैं तो अक्सर घर से निकल जाते हैं, चाबियाँ पीछे छोड़ देते हैं, टेलीफोन पीछे छोड़ देते हैं. ऑफ्टन दे हैव टू एक्चुअली कम बैक टू कलेक्ट दीज थिंग्स. तो इन चीज़ों में अननेसेसरी वक्त बहुत ज़ाया होता है. लिस्टें बनाते हैं, वो लिस्टें ढूंढ नहीं पाते. कोशिश तो करते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए. सो ये तमाम मिसालें हैं आइदर ऑफ हाइपर एक्टिविटी, बट मोस्टली ये मिसालें हैं ऑफ बीइंग इनअटेंटिव. What are the causes of ADHD? Family members में ये ज़्यादा है. तो genes play an important role in whether somebody has ADHD. और बहुत सारे factors including social and environmental factors. ADHD is the extreme of behavioral traits that are common in general population. ये बात बहुत important है कि ये traits जो हैं general population में बहुत ज़्यादा हैं. Unless कि हम इसको प्रॉपरली डायग्नोज ना करें तो आप ये वीडियो देखिए ये मत समझिएगा कि आपको ADHD है. बट ADHD certainly can present in different ways. इसके genetic variants भी हैं. That has found that risk of being diagnosed with ADHD is 9 times higher in siblings of someone who has ADHD. तो आप as compared to the general population, अगर आपकी फैमिली का एक मेंबर को ADHD है तो आप 9 times ज़्यादा prone होंगे to develop ADHD. So Dr. Raheel, what can be done to help these adults with ADHD? Primarily हम ये देखते हैं कि medication certainly helps, और ये as compared to some of the other psychiatric conditions इसकी हम ज़्यादा help कर सकते हैं. तो इसमें stimulant medications देते हैं which actually increase the level of concentration. मैं ज़्यादा नाम इसलिए नहीं बताता कि लोग जाके बाज़ार से ख़रीद के मिसयूज़ करते हैं, बट प्राइमरली स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं. उनमें एक दवाई है मिथाइलफेनिडेट,
कुछ एम्फेटामिन टाइप दवाएं भी हैं। ये इसके रिजल्ट्स हमें फेयरली जल्दी नज़र आते हैं बिकॉज दीज ड्रग्स वर्क क्विकली, बट ये भी है कि इनके इफ़ेक्ट्स ड्रग्स के वेयर ऑफ हो जाते हैं रात को। देयर इज़ जनरली गुड एविडेंस दैट दीज मेडिकेशन वर्क। इंग्लैंड में तो स्पेसिफिक प्रेपरेशंस मिलती हैं, कुछ स्लो रिलीज प्रेपरेशंस होती हैं। तो इसका फ़ायदा स्लो रिलीज प्रिपरेशन का है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दवा नहीं खानी पड़ती, आप दिन में एक दफ़ा भी ले सकते हैं। इंग्लैंड में तो ये लीगली कंट्रोल्ड ड्रग्स हैं। इनफैक्ट व्हाट वी कॉल पिंक पैड प्रिस्क्रिप्शंस। पिंक पैड प्रिस्क्रिप्शंस आर मॉनिटर्ड बाय मेंटल हेल्थ इंग्लैंड यूके में, ताकि ये मिसयूज़ ना हो, और बल्कि ऑडिट्स होते हैं इन तमाम प्रिस्क्रिप्शंस की। However, it's a different story in पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ तो आप कुछ भी ले सकते हैं। बट खुदारा जो भी दवा अपने साइकियाट्रिस्ट से लेके यूज़ करें उसको प्रिस्क्राइब दवाई हो। तो बच्चों में भी हम ये दवा देते हैं। प्रोज एंड कॉन्स देखने आपने ट्रीटमेंट के, ये देखना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इतने सवेयर नहीं हैं, बट वेरी ओकेजनली पीपल कैन डेवलप साइकोसिस। वेट लॉस एक पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट के तौर पे यूज़ हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो टेंशन डेफिसिट के हैं वो कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब नॉन स्टिमुलेंट दवाइयाँ भी हैं, उनमें से एक दवाई है एटोमॉक्सिटीन। दिस इज़ नॉट अ पिंक पैड प्रिस्क्रिप्शन, सो होपफुली मेरे एक्सपीरियंस में इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। ये जो नॉन स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं, इट कैन टेक सेवरल वीक्स टू बिगिन टू हैव देयर फुल इफेक्ट। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट यू नो व्हेन पीपल कम एंड सी मी आई कैन लेट देम नो। बट थोड़ा सा स्टमक के क्रैम्प्स या डायरिया आर फेयरली कॉमनली रिपोर्टेड ड्रग्स विद एटोमॉक्सिटीन, जो कि नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है। सो हाउ इफेक्टिव आर दीज ट्रीटमेंट्स यू जस्ट मेंशन्ड? रिसर्च एडल्ट्स में तो रिलेटिवली कम है, बट बच्चों में बहुत ज़्यादा रिसर्च है और बहुत सारी हमारे पास डेटा है कि मेडिकेशन कितनी इफ़ेक्टिव है। ऑल्दो मैं तो थोड़ी सी अंग्रेज़ी बात करूँगा कि एडल्ट्स में ADHD में इंग्लैंड में काफ़ी सारी दवाइयाँ लाइसेंस नहीं हैं, बट दे आर वेरी कॉमनली यूज एज लॉन्ग एज यू कैन एक्सप्लेन टू योर पेशेंट कि दिस इज़ अ नॉन लाइसेंस इंडिकेशन but it's likely to help you. So Dr. here, can you tell what a patient with the ADHD can do to help themselves? ADHD का जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, डायग्नोसिस से पहले प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। ये एक्सटेंसिव और बहुत डिटेल्ड असेसमेंट्स होती हैं विच कैन टेक अप टू 3 hours, तो ही ट्रीटमेंट को आप फॉलो करेंगे। खुदारा ये वीडियो देख के आप ये ना कीजिएगा कि जी मुझे ADHD है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी जनरल पॉपुलेशन में भी ये सिम्टम्स होते हैं, तो डोंट जस्ट गो टू द केमिस्ट एंड स्टार्ट टू बाय दीज ड्रग्स जस्ट बिकॉज। सो द डायग्नोसिस शुड बी very professionally made using the right tools, और extensive assessments हैं, तो tools बहुत ज़्यादा हैं और वो इचा बीचा निकाल देती हैं बीमारी का। पहले तो देखें कि आपको ADHD है and think how your ADHD affects your day-to-day functioning। ये भी आप देखें कि how it affects people around you, यानी कि आपके एम्प्लॉयर्स, आपके टीचर्स, आपकी फैमिली। अपने मसाइल को और लोगों से डिस्कस करें, स्पेशली people who you know well. You can find out how they see your problems, उनसे feedback लें। तो important है that you must think about the things in your life that seem to help and also look at the factors that make it worse, जिसे हम अपनी ज़बान में letting off steam कहते हैं। This simply means कि आप exercise करें। If you're interested in dancing, you must dance. You can dance on your own or in a class. Sport में engage करें। You need to find ways of whatever works for you as a relaxation technique. For me, I enjoy music, relaxation techniques, watching a movie, reading a good book. So whatever works for you, you must do that. उन चीज़ों को avoid करें that can make your life more difficult. ये simple arguments हो सकती हैं with other people. Drug and alcohol का use हो सकता है। प्रेशर्स ऑफ वर्क को आपने देखना है कि कैसे आप बेस्ट मैनेज कर सकती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप कर सकते हैं टू काइंड ऑफ इम्प्रूव योर लाइफ while suffering from ADHD. So Dr. here, can you give some tips to these adults with ADHD? Again, how
they can help themselves and देखें जी, मैं आपको तकरीबन 15 टिप्स दूंगा टू हेल्प योरसेल्फ, और ये अडेप्ट हुआ है फ्रॉम 50 टिप्स बाय द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन. इनका एक एजुकेशनल डिवीजन है, एड हैलोवेल. यू कैन share with people your diagnosis, but don't use your diagnosis an excuse कि जी मैं इसलिए काम नहीं कर सकता because मेरी attention और concentration ठीक नहीं है. जहाँ ज़रूरत आपको पड़ती है, you must ask for help from your friends and family, but say exactly what you need, get their feedback and also get feedbacks from others. तो feedback दोनों किस्म की होनी चाहिए, अच्छे काम की भी feedback होनी चाहिए and things you've not done that well उसकी भी feedback मिलनी चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है, स्ट्रक्चर बनाएं. आप काम को प्रायोरिटाइज करें. जिन लोगों का स्ट्रक्चर पुअर होता है, चाहे वो घर पे हो या ऑफिस में हो, दे यूजुअली परफॉर्म लेस. सो इफ दे डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टिप्स. सुबह उठ के आप देखें कि यार मुझे आज काम कौन से इम्पोर्टेंट हैं. सो प्रायोरिटाइजेशन इज हर एक को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. और जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, यू कैन मेक लिस्ट एंड नोट्स. आप उनको कलर कोड कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं टेलीफोन्स पे. यू कैन राइट डाउन प्लान्स. बड़े गोल्स को ना आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें. इससे ये होता है कि टास्क बिकम मोर मैनेजेबल एंड लेस ओवरवेलमिंग. रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हेन थिंग्स गो वेल. अपने आप को कोड़े मारने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन चीज़ों को अटेंड नहीं कर सकते. बट नेवरदलेस रिवॉर्ड का सिस्टम इम्पॉर्टेंट है. पनिशमेंट को हम नहीं लेके आते ज़्यादा इस काम में. चूँकि हमें पता है कि बोरिंग टास्क ये नहीं कर सकते, तो एक एक्रोनिम है जिसको हम ओहायो कहते हैं. ओहायो का मतलब है ओनली हैंडल इट वंस, सो दैट एक्चुअली टेक्स द एज ऑफ द एंग्जाइटी. और बोरिंग टास्क अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे तो जल्दी से वो सक्सेसफुल हो जाएगा. I think you must accept that some things are just difficult. They might be difficult for everybody. So don't let these things get you down. जैसे organization का एक और हिस्सा है planning ahead. तो जब आप लोग plan ahead नहीं करते तो वो generally हर चीज़ में anxious होते हैं, meetings में anxious होते हैं, academically anxious होते हैं, या even normal जो activities में. तो planning ahead तो सभी को करनी चाहिए, but more so with patients who suffer from. Even conversations को plan करें अगर important conversations हैं. इसके अलावा आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं that can help you to concentrate. Sometimes I particularly find background music very helpful. Some people find silence very helpful. कुछ लोगों को यह है कि वो fiddle करते हैं with their hands. एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने देखा है हेल्प, जिसको हम ब्लो आउट टाइम कहते हैं. ब्लो आउट सिंपली मीन्स दैट यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम आउट. थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें. उसमें एक्सरसाइज, जिम, डांसिंग, रनिंग, व्हाटएवर टेक्स योर फैंसी. डोंट बीट योरसेल्फ अप इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट. एंड आई थिंक एज पेरेंट्स वी ऑल्सो नीड टू नो कि ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना बच्चे को या टीनेजर को या एडल्ट को, अगर वो उतना ऑप्टिमली हर वक्त परफॉर्म ना कर सके. अब इंग्लैंड में तो ये सपोर्ट ग्रुप्स हैं. इंशाल्लाह एज द अवेयरनेस ग्रोज वील आल्सो बी प्रमोटिंग सपोर्ट ग्रुप्स, जहाँ एक ADHD का सफ़र दूसरे ADHD के सफ़र को इन अ ग्रुप मीटिंग मिल सकता है. एंड देन दे कैन हैव स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. अब इस बीमारी में इरिटेबिलिटी आती है, डिप्रेशन आती है, एंग्जाइटी आती है, पैनिक अटैक्स होते हैं जब आप कई दफ़ा परफॉर्म नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट जगहों पे. सो यू नीड टू लर्न टू टॉलरेट एंड एक्नॉलेज एंड आइडेंटिफाई योर मूड स्विंग्स विदाउट पैनिकिंग. एक और टर्मिनोलॉजी इसको हम कैटास्ट्रोफाइज कहते हैं, यानी कि आई एम रबिश, आई एम होपलेस. तो आप एक छोटी सी चीज़ से एक बहुत बड़े इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं. दोस्त वो रखें जो हु आर गुड फॉर यू. एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर एडवाइस इज़ ट्रू फॉर ऑल young children, older adults. तो दोस्त वही होने चाहिए जो कि स्पेशल हों आपके लिए, and you can spend time with them and find their company useful, and who also attach positive attention to you. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स ऐसे हों
अगर आपको ये बीमारी हो या फॉर दैट मैटर कोई भी बीमारी हो जो ड्रग एंड अल्कोहल में आपको लेके आएँ या प्रमोट करें या आपको कहें यार ये ले लो, अच्छा महसूस करोगे, रिलैक्स करेगा। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू रियली ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर। तो ये भी शाबाश देने का भी सिलसिला जो है वो आप ये ज़रूर जारी रखें, ये पॉजिटिव चीज़ें। सो दीज आर सम ऑफ द हेल्पफुल टिप्स दैट मे help you deal with your ADHD better. So this is, I think we conclude the tips for I think they are very ADHD. insightful. But one last question, I think, which is also a very important question. Say, what do you do to make an assessment for ADHD? Assessment जी हमारे पास बड़े structured tools हैं, कुछ उसमें कहते हैं diagnostic tools हैं, उनमें से एक tool का नाम है DIVA। ये बहुत टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे की, फिर आप सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं और ये एग्जॉस्टिव इसलिए कि एक सवाल बार बार पूछते हैं। इनमें हम इवन इन एडल्ट्स अगर हमें माएँ मिल जाएं या पेरेंट्स मिल जाएं, क्योंकि हमें कोरॉबरेटिव अकाउंट देखें, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो अर्ली ईयर से माएँ ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं कि भाई बच्चा 5 साल की उम्र से कैसे है। तो कोरॉबरेटिव अकाउंट भी है। अनफॉर्चुनेटली यू नो दीज आर नॉट चीप असेसमेंट्स, बट यू नो असेसमेंट ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके बाद ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें साइकोलॉजिकली एंड विद मेडिकेशन। सो बहुत ज़रूरी है कि असेसमेंट जो है बेसिक बुनियाद है ट्रीटमेंट की, तो वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये मैं कहना तो नहीं चाहता, बट आई थिंक प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, स्प्रेड इट अराउंड। This will enhance us to enhance the richness of the portal. और लोग benefit करेंगे because ये चीज़ें merely understood हैं. So go on both the websites of Vlog Central as well as my own website. And you know, if you have any questions, please do not hesitate to contact me. All the details are there on my website, as well as you'll see all the numbers at the end of the presentation. So thank you very much, Nishwa. Thank you so much, Dr. Raheel Karim, for being part of this mental health awareness campaign. We have gotten amazing, useful tips and all the information about especially adults in ADHD. As you have mentioned earlier that you have been seeing a lot of people with ADHD. And thank you so much for being part of this campaign. Thank you. वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।